Hello, my dear students. I am Namita Pant and I am lecturer in English in Government Polytechnic Dehradun. The topic that we are going to do today in English and Communication Skills Semester 1 for Polytechnic students of Uttarakhand, the topic is communication skills. What is the process of communication and what is the importance of these communication skills? Why do you need to learn communication skills? It is not just a part of your syllabus, but I think it will be very useful in your day-to-day life when you go out in the world and do your job. So it will be very useful in your work field as well as in your personal life. So this communication skills, it's very important. Learn well, the presentation that we are going to do here will not only solve your problems while attempting your answers or your question paper, but also will help you in the long run of your life. Okay, so let's do this communication skills. The topics that we are going to deal with is introduction about the communication skills, then what is the process of communication, what is communication cycle, and what is the importance of communication. And also we'll be doing certain exercises on communication skills. Let's move forward. See, what is communication? So first we'll have to understand that communication or social interaction is how we express our ideas. As you all know that man is a social animal and he needs to live in a society, and he also needs to communicate his ideas or his desires and wants through some medium. Okay, so that communication, that sharing of ideas is known as communication. Okay, everything from education to the workplace and even human societies depend on communication to understand each other. The only thing that we can, through which we can share our ideas, is known as communication. जिस भी तरीके से हम उसे शेयर करें दूसरों से, because we are social animal of course. Communication is as old as our civilization itself. There was a time when there was no language. ठीक है, language was not invented, but still people used to communicate through signs and symbols and facial expressions and whatnot, है ना? So that time also communication. So it is as old as this human civilization. Okay, from time immemorial, man, nature, and animals communicated with each other verbally and non-verbally. वर्बली भी किया है और नॉन वर्बली किया है. अभी ये भी समझना है ये वर्बली और नॉन वर्बली होता क्या है. वर्बली मीन्स एनीथिंग वेयर वी यूज लैंग्वेज, चाहे वो लिख के हो, चाहे बोल के हो, चाहे पढ़ के हो, कैसे भी हो, जहां पर लैंग्वेज यूज होगी दैट विल बी नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन. और जहां पर भी लैंग्वेज यूज नहीं हो रही होगी, जैसे लैंग्वेज कहाँ यूज नहीं हो रही होगी, मेरे जो अभी आईब्रोज ऊपर हो जा रहे हैं या जो मेरे हाथों के एक्सप्रेशन है, अगर मैं अपना मुंह बंद कर दूं कई बार, जैसे मैं अगर नहीं कहना चाहती हूँ, सो आई विल से नो, दिस इज अ जेस्चर, है ना? मैंने अपने जेस्चर से बताया कि मुझे नहीं कहना है. या हम ऐसे करते हैं, कंधा हमें उचकाते हैं, तो मुझे नहीं पता कहने के लिए हम करते हैं ऐसे, आई डोंट नो, है ना? सो दीज थिंग्स वेयर लैंग्वेज इज नॉट यूज्ड, दैट इज नोन एज नॉन वर्बल. वहां पर लैंग्वेज यूज नहीं होगी. साइन सिंबल्स, जैसे आप देख लो सड़क पे जो रेड लाइट्स होती हैं, है ना, जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, उसमें हमें सिर्फ साइन होता है. अगर वहां पे स्टॉप ना भी लिखा हो, अगर रेड लाइट जल जाए तो हमें पता है कि दैट मीन स्टॉप. सो वहां पे लाइट को यूज कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए, तो दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है, आप ध्यान रखेंगे. वर्बल मतलब ऐसा नहीं कि जो हमने मुंह से बोला उसे वर्बल बोलेंगे और जो हमने लिखा उसे नॉन वर्बल बोलेंगे, नहीं. जहां पे हम लैंग्वेज यूज करते हैं वो सारा का सारा वर्बल है. और जब हम लैंग्वेज यूज नहीं करते, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, उसे ही नॉन वर्बल बोलते हैं. ठीक. द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड कम्युनिकेयर. आपको ये भी देखना है क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. कई बार आपको ये सवाल आता है कि कम्युनिकेशन वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है या उसका क्या मीनिंग है. कम्युनिकेयर इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स टू शेयर. शेयर करने को कहते हैं कम्युनिकेयर, लैटिन वर्ड है और वहां से हमने बनाया वर्ड कम्युनिकेशन. ओके, आगे देखिए. यू प्रोबेबली हियर पीपल टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन ऑल द टाइम. एवरीवन नीड्स इट एंड वांट्स इट, बट व्हाट एग्जैक्टली इज कम्युनिकेशन? Let us try to understand it. Communication can be defined as the sharing or exchanging of thoughts, opinions, or information by speech, writing, gestures, listening, etc. क्या है वो एक्चुअली? हमारा शेयरिंग करना है. हम शेयर कर रहे हैं अपने थॉट्स को, अपनी ओपिनियंस को या कुछ इंफॉर्मेशन को किसी भी मीडियम से, बोल के, लिख के, जेस्चर से या सुन के. ये सारा का सारा किसके अंदर आएगा? कम्युनिकेशन में आएगा. ठीक है. द कॉमन कंपोनेंट इन ऑल काइंड ऑफ इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन इज अंडरस्टैंडिंग. इसका कॉमन कंपोनेंट क्या होता है? वो समझ आना चाहिए.
उस कम्युनिकेशन का कोई फायदा नहीं है जहां पे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है, वो कम्युनिकेशन है ही नहीं। फायदा क्या नहीं है, वो कम्युनिकेशन है ही नहीं। कम्युनिकेशन वही होगा जो बोला गया या जो लिखा गया या जो जेस्चर से बताया गया वो सामने वाले को समझ आ गया, तभी वो कम्युनिकेशन है। ठीक है। Without understanding, there would be no transfer of information or knowledge and the communication becomes directionless. अगर समझ नहीं आ रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या इंफॉर्मेशन हमने ट्रांसफर करी या क्या नॉलेज हमने ट्रांसफर करने की कोशिश की, तो कम्युनिकेशन डायरेक्शनलेस हो गया। एंड वंस इट बिकम्स डायरेक्शनलेस इट इज ऑफ नो यूज। ठीक है। कम्युनिकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेयरिंग आइडियाज, ओपिनियंस, थॉट्स एंड क्लैरिफाइंग डाउट्स। सब चीजों में हमारे ये काम आता है। ठीक है। आगे देखिए, process. What is the process of communication? Good communication skills are essential to effective business communication. At its core, the aim of communication is to transmit information from one person to another. चाहे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाना हो, या चाहे एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाना हो, कैसा भी हो, या एक व्यक्ति से बहुत सारे व्यक्तियों पर जाना हो क्या रहा है, एक्चुअली इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है। सो दैट द सेंडर कौन है? सेंडर वो होता है जो कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, जो कुछ मैसेज को भेज रहा है। और रिसीवर, बोलने से ही समझ आएगा ना, रिसीवर कौन होता है? जो उस इंफॉर्मेशन को ले रहा है। ठीक है। द सेंडर एंड द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज इन द सेम वे। सेंडर ने जिस तरीके से मैसेज भेजा है, सेम उसी तरीके से रिसीवर को समझ आया है, ये प्रॉपर कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है। मतलब मैं आपको अभी जो बताना चाह रही हूं, आपको एग्जैक्टली वही अगर समझ आ रहा है तो ये कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है। ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन यूजुअली फॉल्स ऑन द सेंडर, क्योंकि सेंडर ही वो कम्युनिकेशन को, मैसेज को ट्रांसफर करने वाला है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजुअली सेंडर पर होती है कि वो उसको बिल्कुल क्लियरली बताए। ठीक। तभी तो बाइलिंगुअल, जैसे मैं यहाँ पर बाइलिंगुअल क्यों यूज कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इंग्लिश भी यूज करती हूँ, हिंदी भी यूज करती हूँ, क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये सही सही समझ आ सके। ठीक है ना। बट द रिसीवर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। पर ऐसा नहीं है कि सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंडर की ही है, लेने वाला जो है मैसेज को, उसकी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंफर्म अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज, कि उसको ये कंफर्म करना होता है कि उसको वो मैसेज बिल्कुल सही सही समझ आ गया है। वो कंफर्म कैसे करेगा? मेरे पास क्या तरीका है, मान लो आप अपने आप से कंफर्म, जैसे अभी हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ तो ये वन वे सॉर्ट ऑफ है, ये एक वन वे हो रहा है। मैं आपको बोलती जा रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन गैदर आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो इसका क्या तरीका है? मान लो किसी दिन हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ठीक है, जो स्कूल सिस्टम में टेस्ट वगैरह होते हैं, एग्जाम्स वगैरह होते हैं, वो क्यों होते हैं? इट इज अ वे ऑफ गेटिंग फीडबैक। फीडबैक लेने का एक तरीका है कि क्या आपको वही समझ आया है जो बताया गया है, या आपको कितना समझ आया है। ये लेवल पता करने के लिए ही फीडबैक लिया जाता है, या जो वो है टेस्ट लिए जाते हैं। या फिर मैं आपसे वर्बली, मतलब ओरली आपसे मैं कोई क्वेश्चंस पूछूं, या मैं आपसे कोई क्विज करवाऊं, ये सारे तरीके किस चीज के हैं? कि मैं एक फीडबैक ले रही हूँ। या फिर अगर आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है, तो मैं किसी बच्चे को खड़ा करके पूछूं कि भाई बताओ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होती है ना। तो वहां पर क्या होगा, फेस टू फेस कम्युनिकेशन में आप ओरली मुझे जवाब दे दोगे कि भाई प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ये होती है, और मुझे उसी समय पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ आया है। ठीक। कम्युनिकेशन इज अ डायनेमिक एंड साइक्लिकल प्रोसेस। साइक्लिकल प्रोसेस मतलब एक साइकिल में चलती रहती है। मैसेजेस एक तरफ से जाते रहते हैं, दूसरी तरफ से वो समझ आता है और फिर वो फीडबैक देता है। इसको हम दूसरी भाषा में, जो मैं आपसे कह रही हूं अभी कि हम एग्जाम देते हैं, मतलब आपसे एग्जाम लिखने को कहते हैं, या आपसे ओरली आंसर्स पूछते हैं, या फिर क्विज लेते हैं, ये क्या तरीका है, क्या करने का तरीका है? आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने का तरीका है, एक तरीके से फीडबैक ले रहे हैं। ठीक है। सो इसीलिए एक साइक्लिकल प्रोसेस है। सेंडर मैसेज को भेजेगा, रिसीवर मैसेज को रिसीव करेगा और फिर फीडबैक देगा। फीडबैक देने से क्या पता चलेगा कि जो मैसेज भेजा गया था क्या वही समझ आया है ना। ठीक है। तो ये इसलिए एक डायनेमिक प्रोसेस है, लगातार चलती हुई प्रोसेस, साइकिल में चलती रहती है। ठीक है। ब्रेकिंग डाउन द कम्युनिकेशन साइकिल इनटू इट्स पार्ट इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोथ द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ। अगर हम इस कम्युनिकेशन साइकिल को पार्ट्स में ब्रेक कर ले, तो हमें आराम से समझ आ जाएगा कि सेंडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिसीवर की क्या है। ठीक। देखिए आगे, ये देखिए एक पिक्चर है आपके आगे, जहां पे कम्युनिकेशन साइकिल चल रही है। ये जो व्यक्ति है इसे कहते हैं सेंडर। ठीक है।
ये मैसेज को क्या कर रहा है, एनकोड कर रहा है। एनकोड कर रहा है माने उसके दिमाग में उसने ये इंटरप्रिटेशन हुआ ना, उसने कोई चीज को समझा और उसके बाद उसे किसी लैंग्वेज में लिख करके, बोल करके, ईमेल करके या कोई विजुअल प्रेजेंटेशन बना करके उसे एनकोड किया, ठीक है। फिर उस मैसेज को भेजा, एनकोड करके मैसेज में कन्वर्ट किया, फिर उसे भेजा। ये कौन है यहाँ पे, ये है रिसीवर। इस रिसीवर ने क्या किया, उस मैसेज को जो भेजा गया था उसे डी कोड किया। समझ रहे हैं आप ना, एनकोड करना माने किसी टर्म में उसे लेकर आना, और डिकोड करना माने जैसा उसने बोला था उसको समझने की, अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करना, दैट इज डिकोडिंग, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, फिर से एनकोड किया। एनकोड किया माने क्यों, फीडबैक देने के लिए। किस लिए एनकोड किया उसने, फीडबैक देने के लिए किया, और यहां पर उसके फीडबैक को फिर सेंडर ने डिकोड किया। ये जानने की कोशिश की, ये डिकोडिंग क्यों करी उसने, ये जानने की कोशिश की कि जो उसने एनकोडिंग से मैसेज भेजा था क्या उसको ये प्रॉपरली उससे डिकोड कर पाया या नहीं कर पाया, ठीक है। मतलब कि जो उसने मैसेज भेजा था क्या उसे वो ढंग से समझ आया या नहीं आया, ये किस बात से पता चलेगा, ये इस फीडबैक मैसेज से पता चलेगा, ठीक है। सो इस तरीके से क्या आप देख रहे होंगे कि ये एक साइकिल बन गई है ना। यहां से मैसेज गया, इसने समझा, इसने फिर फीडबैक दिया, फिर उसने दोबारा कुछ एनकोड किया, तो ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है, ठीक। आगे देखिए, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। अकेले में तो कम्युनिकेशन होता ही नहीं ना, मतलब अपने अंदर ही अंदर, इंट्रापर्सनल कहते हैं उसे, जो मैं अपने मन ही मन में सोच रही हूँ कि अब मैं ये करूंगी या वो करूंगी, अपने मन में भाषा भी बना, इसे बोलते हैं इंट्रापर्सनल। लेकिन ज्यादातर ये कैसी होती है कम्युनिकेशन की प्रोसेस, टू वे होती है, दोनों तरफ से। अगर कोई मैसेज जाएगा तो वापस भी जरूर आएगा, ठीक है। through which information or message is exchanged between individuals using language, symbols, signs और behavior, है ना। या तो हम भाषा यूज करेंगे, या सिंबल्स यूज करेंगे, या साइन करेंगे, या फिर हम अपने व्यवहार से बताएंगे। इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को या मैसेज को एक्सचेंज करते हैं, लेन देन, ठीक। स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर द पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये तो कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। हम बोल के कर सकते हैं, हम सुनते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम लिख सकते हैं, है ना। विच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अदर्स। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स अ सेंडर हु एनकोड्स एंड सेंड्स अ मैसेज थ्रू अ चैनल। चैनल माने किसी तरीके से, ये जो हमने लैंग्वेज यूज करी या सिंबल्स यूज करे, है ना, ये चैनल्स हैं। एंड अ रिसीवर हु डिकोड्स द मैसेज एंड गिव्स फीडबैक। Feedback is important in communication as it helps in knowing whether the receiver had understood the message or not. Feedback क्यों important है, क्योंकि उससे पता चलता है कि रिसीवर को मैसेज समझ आया या नहीं, ठीक। आगे देखिए, ये एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन है। देखो, सेंडर ने क्या किया, मैसेज को एनकोड किया, फिर किसी मीडिया के थ्रू, या इसको हम बोलते हैं किसी चैनल के थ्रू, है ना, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको, किसी चैनल के थ्रू इस मैसेज को भेजा, और रिसीवर ने उसे क्या किया, डिकोड किया, ठीक है। फिर अपने रिस्पॉन्स को किस तरीके से भेजा, फीडबैक के थ्रू भेजा। किसको भेजा, सेंडर को भेजा। तो ये साइकिल का ही दूसरा फॉर्म है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक। आगे देखिए, अब इसका पहला पार्ट है सेंडर या एनकोडर, मैसेज को जो एनकोड करता है। सेंडर या एनकोडर कौन होता है, इज अ पर्सन हु सेंड्स द मैसेज। अ सेंडर मेक्स यूज ऑफ सिंबल्स, वर्ड्स और ग्राफिक और विजुअल एड्स टू कन्वे द मैसेज एंड प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स। कुछ भी एक ऐसा एनकोड करेगा मैसेज को, जैसे मैंने यहाँ पे कैसे एनकोड किया है, प्रेजेंटेशन के थ्रू किया है, और फिर मैं क्या कर रही हूँ साथ में, मैं उसे एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, तो ये सारी मैं मदद ले रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हमने अगर वर्बली कर दिया, या मतलब हमने कोई लैंग्वेज यूज कर दी तो फिर हम साइंस यूज नहीं करेंगे, या फिर हमने अगर लिख दिया है तो फिर हम उसे पढ़ेंगे नहीं। मतलब हम कई सारे तरीके अपनाते हैं ताकि वो मैसेज प्रॉपरली कन्वे हो जाए। मैंने यहाँ पे क्या क्या तरीका अपनाया है, मैंने देखो, एक तो कंप्यूटर्स का यूज किया, ठीक है, एक चैनल तो मैंने ये भी यूज किया। दूसरा चैनल मैंने क्या किया, प्रेजेंटेशन बनाई, यानी कि टाइप किया, मैंने लिखा। और तीसरा अभी क्या कर रही हूँ, बोल रही हूँ, ओरल भी हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो इतनी सारी चीजों से मैं एक मैसेज को कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ, और वो मेरा मैसेज क्या है कि आपको कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो समझ आ जाए, ठीक। अब देखिए, अ सेंडर मेक्स यूज ऑफ सिंबल्स, वर्ड्स और ग्राफिक और विजुअल एड्स टू कन्वे द मैसेज एंड प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स। फॉर इंस्टेंस, अ ट्रेनिंग मैनेजर कंडक्टिंग ट्रेनिंग फॉर न्यू बैच ऑफ एम्प्लॉइज। अगर कोई ट्रेनिंग मैनेजर है, वो नए बैच के लिए, एम्प्लॉइज के लिए अगर कोई मैसेज को देना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, कई सारी चीजों को यूज करेगा। मैं भी एक ट्रेनिंग मैनेजर की तरह तो हूं आपके लिए, है ना, कि मैं
अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए बहुत सारी चीजों का यूज कर रही हूँ, मल्टीपल चैनल्स का यूज कर रही हूँ। सेंडर में बी एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप और एन ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो सकता है। एक इंडिविजुअल जैसे मैं हूं अभी, है ना, या फिर कोई ग्रुप आपको कॉलेज कोई देना चाहता है, या कोई एक आपका डिपार्टमेंट आपको कोई मैसेज देना चाहता है, या फिर आपका पूरी संस्था आपको कोई मैसेज देना चाहती है, इट कैन बी एनीवन। ठीक। मैसेज, message is a key idea that the sender wants to communicate. It is a sign that elicits the response of recipient. वो एक ऐसा साइन होता है जिससे रेसिपिएंट का रिस्पॉन्स आता है। मैसेज पर ही तो रिस्पॉन्स देता है वो, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिंस विद डिसाइडिंग अबाउट द मैसेज टू बी, इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैसेज इज क्लियर। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो मैसेज का मेन ऑब्जेक्टिव है, जैसे मेरा ये जो मैसेज है, ये जो पूरी मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है ना अभी तक की, इनका एक ही मैसेज है, एक ही ऑब्जेक्टिव है मेरा, कि आपको ये समझ आना है। मैं आपको समझाना चाहती हूँ क्योंकि ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। मैं चाहती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से आप इसे प्रिपेयर कर पाओ, ताकि आप अपने एग्जाम्स तो अच्छे दो ही, लेकिन आपके आगे आने वाली लाइफ में भी ये आपके हेल्प हो इससे। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, इसको मैं क्लियरली आपको कन्वे करना चाहती हूँ, तभी तो बिल्कुल प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। मीडियम, मीडियम इज अ मीन्स, क्या है वो, एक माध्यम है जिससे हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं या ट्रांसमिट कर रहे हैं मैसेज को। द सेंडर मस्ट चूज एन अप्रोप्रिएट मीडियम फॉर ट्रांसमिटिंग द मैसेज। उसको एक अप्रोप्रिएट मीडियम को चुनना चाहिए सेंडर को। जैसे ये जो प्रोसेस मैंने स्टार्ट करी थी ऑनलाइन अपने प्रेजेंटेशंस को देने की, यूट्यूब पे डालने की, वो इसलिए शुरू करी थी क्योंकि उस समय कोरोना पीरियड चल रहा था। ठीक है, सो उस समय हमारी ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही थी, हम डायरेक्टली जाकर बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे थे, लेकिन हमको कवर भी करना था, हमको पढ़ाना भी था, सिलेबस भी कवर होना चाहिए था, क्योंकि एग्जाम्स बच्चों ने अल्टीमेटली देने ही हैं और कोई भी टॉपिक छूटना भी नहीं है। तो उसके लिए ये मीडियम मैंने अपनाया कि हम इसे ऑनलाइन दे सकते हैं। ये चॉइस क्यों हुई, क्योंकि कोई कारण है। तो हमको क्या करना चाहिए, अप्रोप्रिएट। अगर मैं उस समय सोचती कि ऑफलाइन क्लासेस हो जाएं तो वो तो पॉसिबल है नहीं, है ना। सो द सेंडर नीड्स टू चूज एन अप्रोप्रिएट मीडियम, सही माध्यम उसने चुनना है, और एल्स द मैसेज माइट नॉट बी कन्वेड टू द डिजायर्ड रेसिपिएंट। उससे अदरवाइज क्या होगा, मैसेज जो है डायरेक्टली रेसिपिएंट्स पर नहीं जाएगा। The choice of appropriate medium of communication is essential for making the message effective and correctly interpreted by the recipient. इस मैसेज को जो मीडियम है वो कम्युनिकेशन का इसलिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि उसी की वजह से जो मैसेज है वो आपका इफेक्टिव होता है या रेसिपिएंट उसे सही तरीके से समझ पाता है। ठीक है, दिस चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। डिपेंड करता है कि हम कम्युनिकेशन के क्या क्या हमारे फीचर्स हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं, उसकी उस पर डिपेंड करेगा कि हम उसे किस मीडियम से देंगे। ठीक है, मान लो कुछ ऐसी चीज है जैसे पॉलिटिकल नेता अगर कोई है, अगर वो रिटर्न कोई मैसेज देगा ना तो लोगों पर उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर वो फेस टू फेस आएगा, लोगों के मास कम्युनिकेट करेगा ओरली, तो ज्यादा इफेक्टिव होगा वो, है ना, क्योंकि भाषण है भाई वो। For instance, written medium is chosen when a message has to be conveyed to a small group of people. अगर किसी छोटे ग्रुप के लिए भेजना है तो written message करो. While an oral medium is chosen when spontaneous feedback is required. अगर हमें उसी समय feedback चाहिए तो हम कौन सा medium अपनाते हैं, ओरल अपनाते हैं। ठीक है, एज मिसअंडरस्टैंडिंग आर क्लियर देन एंड देयर। क्यों होता है इसमें, क्योंकि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं तो वो वहीं की वहीं क्लियर हो जाती है, इसलिए वहां पे हम ओरल मीडियम अपनाते हैं। ठीक, आगे देखिए। रेसिपिएंट या डिकोडर कौन होता है, इज अ पर्सन फॉर हुम द मैसेज इज इंटेंडेड, जिसके लिए वो मैसेज बनाया गया। जैसे यहां पर मेरे लिए रेसिपिएंट या डिकोडर कौन है, स्टूडेंट्स हैं। ये मैसेज जो है या ये जो प्रेजेंटेशन है ये उनके लिए बनी है, इंटेंडेड है, एम्ड है या टारगेटेड है। द डिग्री टू विच द डिकोडर अंडरस्टैंड्स द मैसेज इज डिपेंडेंट अपॉन वेरियस फैक्टर्स सच एज नॉलेज ऑफ द रेसिपिएंट। आपको पहले से ही कितनी नॉलेज है इस बारे में, है ना। ठीक, देयर रिस्पॉन्सिवनेस टू द मैसेज, वो कितने रिस्पॉन्सिव होते हैं इस मैसेज के लिए, एंड द रिलायंस ऑफ एनकोडर ऑन डिकोडर, या फिर डिकोडर कितना, एनकोडर जो है वो कितना रिलाई करता है डिकोडर पर। मैं जानती हूं कि आप फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं और आपके ये सिलेबस में इंक्लूडेड है, और आप जब इसे पढ़ोगे तो आप बहुत इंटरेस्ट से पढ़ोगे क्योंकि आपको मालूम है कि इसी के बेसिस पर आपको ईसीएस का एग्जाम देना है, और यही कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आप सीखेंगे तो आपके आगे लाइफ में भी काम आएगा। तो मैं जानती हूं कि जो मेरे रेसिपिएंट हैं दे आर ईगर टू लर्न दीज थिंग्स। ठीक है, फीडबैक क्या है,
फीडबैक इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एज इट परमिट्स द सेंडर टू एनालाइज द एफिकेसी ऑफ द मैसेज, कि सेंडर को पता चलता है कि उसने कितनी एफिशिएंटली अपने मैसेज को बनाया था कि उसको समझ आया रिसीवर को. इट हेल्प्स द सेंडर इन कंफर्मिंग द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज बाय द डिकोडर. ठीक है, सही सही इंटरप्रेट हुआ या नहीं हुआ वो भी समझ आता है. फीडबैक मे बी वर्बल, वर्ड्स के थ्रू भी दिया जा सकता है, मतलब लैंग्वेज के थ्रू, या नॉन वर्बल, जैसे हम स्माइल करें, है ना, या जैसे हम क्या करते हैं जब कभी हमें कोई समझा रहा होता है, अगर मैं फेस टू फेस आपको ये सब बता रही होती तो कई सारे स्टूडेंट्स क्लास में क्या करते हैं, ऐसे नोट करते हैं, मतलब हाँ हमें समझ आ रहा है. तो ये जेस्चर जो है इससे पता चलता है कि बच्चे को समझ आ रहा है. इट मे टेक रिटन फॉर्म ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ मेमोज, रिपोर्ट्स. ये रिटर्न में भी हो सकता है, अगर मैं मेमो भेजूं या रिपोर्ट्स भेजें उससे भी हम वर्बली अपने आप को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस वन सेल्फ. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए इंपॉर्टेंट है. इट ऑल्सो सेटिस्फाइज वंस नीड्स, ये एक की जरूरत, किसी भी व्यक्ति की जरूरत है कि वो अपने आप को कम्युनिकेट करे. इवन व्यक्ति की ही नहीं, मैं तो कहूंगी कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सबकी जरूरत है अपने आप को कम्युनिकेट करना. वन शुड हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर एडवांसमेंट इन करियर. अगर हम करियर के फील्ड में देखें तो उसके लिए क्या जरूरी है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत इफेक्टिव होने चाहिए. In your personal life, effective communication skills can smooth your way and your relationships with others by helping you to understand others and to be understood. अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होंगे तो दूसरे आपको अच्छे से समझ पाएंगे और आप भी दूसरों को अच्छे से समझ पाएंगे. इन द प्रोफेशनल सेटिंग, और अगर जॉब के फील्ड में देखें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स एनहांस एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी. एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इससे, टीम बिल्डिंग बूस्टअप होती है. ठीक है, और जो टर्नओवर रेट होता है वो आपका रिड्यूस होता है. ठीक है, मतलब आपकी एफिशिएंसी उससे बढ़ जाती है अगर आप प्रॉपरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. In the personal setting, communication helps foster stronger relationships, build better trust and provides new opportunities. आपको सारे नए नए मौके मिलते हैं, आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग होती हैं और एक दूसरे पर ट्रस्ट बढ़ता है अगर आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं. ठीक. कम्युनिकेशन इज नॉट मियरली एसेंशियल बट द नीड ऑफ द आवर. जरूरी ही नहीं है बल्कि इस समय की वक्त की जरूरत भी है. It allows you to get the trust of the people and at the same time carry better opportunities before you. Some important points are as follows. क्या होता है, helps to build relationships. ठीक है. Improve the working environment. अगर आप communicate करेंगे properly ना तो कोई भी harsh environment आपके बीच में नहीं रहेगा, है ना. फॉस्टर स्ट्रॉन्ग टीम, आपकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी. फाइंड द राइट सॉल्यूशंस, आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपको ज्यादा सॉल्यूशंस मिलेंगे. या और साथ में क्या होगा, आप रिस्पेक्ट भी गेन करेंगे क्योंकि आप लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं. ठीक. आगे देखिए. Communication is of the greatest importance. It is important to sharing out one's thoughts and feelings to live a fuller and happier life. अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. द मोर वी कम्युनिकेट द लेस वी सफर एंड द बेटर वी फील अबाउट एवरीथिंग अराउंड. जितना ज्यादा हम कम्युनिकेट करते हैं उतना हमें दिक्कत कम होती है ना, क्योंकि हम अपने सारे भावों को, सारे जो हमारे थॉट्स हैं उनको हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और हम बेटर फील करते हैं. ठीक. However, it is all the more necessary to learn the art of effective communication to put across one's point well. अगर हमको अपने पॉइंट को अच्छे से लोगों के सामने रखना है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक आर्ट है जिसे हमें लर्न करने की, सीखने की जरूरत है. ठीक. आगे ये देखिए. एमसीक्यूज हैं. जैसा कि मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि मैं जो भी आप लोगों को एक्सरसाइजेस देती हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए 16 मैंने क्वेश्चंस दिए हैं और आंसर्स हैं उसके बाद. ऐसे ही फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, 3-4 क्वेश्चंस हैं शॉर्ट आंसर. अच्छा, इनके आंसर्स भी साथ में दिए हुए हैं. आपको एमसीक्यू पहले खुद सॉल्व करने हैं, उसके बाद आप आंसर से चेक कीजिएगा. दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शॉर्ट आंसर आएंगे. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें सो इट इज नॉट जस्ट दैट यू विल गेट शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस या 1 word आंसर्स और शॉर्ट आंसर 30 to 40 words आंसर. यू कैन गेट some long answers from this topic as well. Like you can be asked what is the importance of communication, write in 100 to 150 words. So for that I have not written those answers separately just because I have dealt with the topic here.
you have a topic called importance of communication in this presentation, so you can go through it. It will make a very good long answer for you. अगर आप इसको ही अच्छे से प्रिपेयर कर लें, अच्छे से ही पढ़ लेंगे, तो ये एक लॉन्ग आंसर आपके लिए प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, मैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ, या फिर जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आ जाए, मान लीजिए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के, तो वो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? सेंडर होता है, मैसेज होता है, रेसिपिएंट होता है, फीडबैक होता है, ये 5 होते हैं। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स, तो ये एक लॉन्ग आंसर की तरह पे आपके लिए एग्जाम में आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, या फिर आपके लिए एग्जाम में आ सकता है ये व्हाट इज अ कम्युनिकेशन साइकिल, तो आप वहां पे क्या करोगे, एक कम्युनिकेशन ऐसे साइकिल बना दोगे और इसको एक एक करके एक्सप्लेन कर दोगे। मतलब एक एक करके एक्सप्लेन करना माने सेंडर क्या है, मैसेज क्या है, रिसीवर क्या है और फीडबैक क्या है, आप इसे ऐसे एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, तो ये है। या फिर आपको एक लॉन्ग आंसर आ सकता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस वाले जो ये अभी आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसको अच्छे से समझोगे, इसको वहां पे लिखोगे और साथ में एक कम्युनिकेशन साइकिल बना दोगे, आपका लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और इसी वजह से मैंने लॉन्ग आंसर्स पीछे आपको एक्सरसाइजेस में नहीं दिए हैं, क्योंकि एमसीक्यू उससे बना दिए, आपको हेल्प हो जाएगा, 1 वर्ड आएगा, फिल इन द ब्लैंक आएगा, या ट्रू फॉल्स आएगा, आप उससे अटेम्प्ट कर सकते हो, या शॉर्ट आंसर आएंगे 30 to 40 वर्ड्स, वो आप उससे अटेम्प्ट करते हो। लॉन्ग आंसर आपको प्रेजेंटेशन में ही मिल जाएगा। ठीक है, सो इसी के साथ मैं अपनी ये प्रेजेंटेशन को खत्म करती हूँ। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल. You can go back to the presentation anytime you like and clarify your doubts there. Even after this presentation, if you have any doubts, you can always ask me in the comment box. With these words, I bid you goodbye. Take care and study very well.